everyone, welcome to Sciencely Tutorials. I'm Insha. Today we are going to discuss the topic from childhood and growing up, that is related to development of child at different stages. Okay, in this topic we are going to discuss the difference between growth and development. What is growth and what is development? After that, we are going to discuss the difference between growth and development, principles of growth and development, and the various stages of development, growth and development of a child. That is infancy, childhood, and adolescence. We are going to discuss it in detail. Now, after that, changes. What are the changes taken place in a child's body uh, during these stages, infancy, childhood, and adolescence? Changes that are physical changes, mental changes, social, emotional, moral, and educational changes. All the changes we are going to discuss in detail. And what are the factors that are influencing these changes? कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कोई भी चेंज होता है, तो those factors we are going to discuss in detail. After that, theories of development. Second part, after discussing the various differences of development and stages and principles of development and the factors of development, various changes, we are going to discuss theories of development. First of all, the most important theory, that is Jean Piaget theory of cognitive development, Kohlberg's theory, Erik Erikson's theory, then Sigmund Freud's theory, then Vygotsky's sociocultural theories. These 5 theories are very important, and we are going to discuss it one by one. After that, we are going to discuss again the factors affecting growth and development in very detail. Um, we are going to discuss using these following points: heredity and environment as a factor, maturation as a factor, parenting style as a factor, media as a factor. These factors, इन factors की वजह से क्या क्या changes आते हैं, हम वो detail में देखेंगे. ठीक है, तो these 4 are the most important factors that basically influence the changes. Now, after that, we are going to discuss the difference between growth and development. Okay, first of all, we are going to discuss the meaning of both growth and development. Growth meaning physical change in the body. Okay, when we are talking about growth, तो हम physical change की, physical growth की बात करते हैं. And about development, the meaning of development is overall changes in the child. यानी कि physical development भी और mental development, हर तरह के डेवलपमेंट को हर तरह की ग्रोथ को हम डेवलपमेंट में कंक्लूड करते हैं, हर तरह के चेंज को हम डेवलपमेंट में कंक्लूड करते हैं, पॉजिटिव चेंज को. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम ग्रोथ में हम सिर्फ फिजिकल चेंज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ओवरऑल चेंज की बात कर रहे हैं. एग्जाम्पल देखेंगे हम ग्रोथ का, इंक्रीज इन हाइट, मास एटसेट्रा. वेट गेन हो रहा है, हाइट बढ़ रही है, तो हम क्या कहेंगे, दैट ग्रोथ इज हैपनिंग. नाउ डेवलपमेंट, बेटर परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट और सब्जेक्ट एक्सेट्रा. अब यहाँ पे हमें कोई भी फिजिकली कुछ अपीयरेंस दिखाई नहीं दे रहा, पर हम यहाँ पे किस बारे में बात कर रहे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो गई कि बेटर परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट एंड सब्जेक्ट. तो यहाँ पे ये हम डेवलपमेंट में कंक्लूड करेंगे. चेंजेस इन ग्रोथ, साइज चेंज होता है, नंबर, काइंड, पोजीशन, वेट एक्सेट्रा. अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल चेंजेस, ये सारी चीजें ही डेवलपमेंट में आ जाएंगी. इवन ग्रोथ के जो एलिमेंट्स है वो भी डेवलपमेंट में कंक्लूड हो जाएंगे. फिजिकल चेंज की बात हो गई यहाँ पे.
नाउ टाइप्स ऑफ चेंजेस। ग्रोथ में हमेशा क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, और यहाँ पे बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस इन डेवलपमेंट अकर. Now, intensity of change and continuity of cycle. Growth stops in adulthood. As we know, कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग है, वो एक पर्टिकुलर एज के बाद उसकी हाइट और वेट, उसका बॉडी स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो ग्रो करना बंद कर देते हैं. हाँ, वो बेसिकली चेंजेस आते हैं उसकी बॉडी में, पर क्वांटिटेटिव कोई चेंज नहीं आता. ना डेवलपमेंट नेवर एज. ठीक है, डेवलपमेंट कभी भी नहीं रुकता. ठीक है, आप नॉलेज गेन करते रहें, आप एट द एंड ऑफ द योर लाइफ तो आपका जो डेवलपमेंट होता रहेगा. ब्रॉडर एंड नैरो टर्म्स. ग्रोथ इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट. ग्रोथ क्या है? डेवलपमेंट का एक एलिमेंट, एक कंपोनेंट है. डेवलपमेंट टर्म इंक्लूड्स ग्रोथ. डेवलपमेंट जो है वो एक वास्ट टर्म है, इसके अंदर बहुत सारे चीजें इंक्लूड हो जाती हैं. तो यहाँ पे हम ग्रोथ की डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा एज एन एलिमेंट. नाउ मेजरमेंट. चेंजेस इन ग्रोथ. चेंजेस कैन बी मेजर्ड. हाइट हम मेजर कर सकते हैं, हम वेट मेजर कर सकते हैं. तो ग्रोथ के अंदर जो चेंजेस हैं हम वो मेजर कर सकते हैं. वाइल इन डेवलपमेंट चेंजेस कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड और फेल्ट. ठीक है, हम उसको मार्क कर सकते हैं कि मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं. ठीक है, वो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं और फेल्ट कर सकते हैं जो भी डेवलपमेंट हो रहा है. आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. यहाँ पे उन्होंने बता दिया है ऊपर. डेवलपमेंट फिजिकल भी है, मेंटल भी है, इमोशनल भी है और सोशल भी है. ठीक है, वहीं पे जो ग्रोथ है दैट इज ओनली ओनली फिजिकल. ठीक है, तो मेंटल, इमोशनल, सोशल एस्पेक्ट्स ग्रोथ में इंक्लूड नहीं होंगे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. First, means general truth and general patterns about growth and development in humans. Principles क्या होते हैं? जो कोई भी general truths हैं. ठीक है, तो वही हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे. सबसे फर्स्ट है कंटिन्यूटी. दोनों की कंटिन्यूटी किस तरह से रहती है? डेवलपमेंट हैपेंस फ्रॉम बर्थ टू डेथ. हमने बताया अगर हम नॉलेज गेन कर रहे हैं तो हम बर्थ से टिल डेथ तक करते रह सकते हैं, वो डेवलपमेंट में इंक्लूड होगा. ठीक है, फिजिकल, मेंटल, लिंग्विस्टिक एक्सेट्रा. ठीक है, आपने बॉडी बिल्डिंग कर ली, ठीक है, तो वो मसल गेन कर लिया, तो वो भी डेवलपमेंट में आ गया. मेंटली आपने कुछ नया सीख लिया. लिंग्विस्टिक, कोई नई लैंग्वेज सीख ली आपने, तो दैट इज इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट. यूनिफॉर्म पैटर्न. डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, और ग्रोथ क्या है? ग्रोथ हमेशा एक टाइम के बाद आपकी ग्रोथ रुक जाती है जब बॉडी का, फिजिकली बॉडी का पूरा ग्रोथ हो जाता है. यूनिफॉर्म पैटर्न की बात करेंगे. डेवलपमेंट एज अ यूनिफॉर्म पैटर्न. एग्जाम्पल लैंग्वेज. डेवलपमेंट एज अ सीक्वेंस, साउंड, वर्ड, लेटर, सेंटेंसेस. ठीक है, डेवलपमेंट का हमेशा एक पैटर्न होता है. ठीक है, उस पैटर्न में ही हम डेवलपमेंट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. जैसे कि अगर कोई लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, कोई लैंग्वेज सीख रहे थे, पहले हम उसको साउंड सिखाएंगे, फिर वर्ड्स सिखाएंगे, लेटर्स, देन सेंटेंसेस. वाइल ग्रोथ की बात करें, मिल्क टीथ विल फॉल एट फर्स्ट एंड अदर्स आफ्टरवर्ड्स. स्टैंड बिफोर वॉक. ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वहां पे कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं है, कोई यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है. पहले मिल्क टीथ टूटते हैं, उसके बाद फिर फॉल होते हैं, उसके बाद, और वो भी इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई से भी कभी भी टूटता है. उसके बाद आपके जो परमानेंट टीथ हैं वो आते हैं. स्टैंड बिफोर वॉक. तो यहाँ पे कहीं कहीं आपको सीक्वेंस देखने के लिए मिलेगा कि हमेशा बच्चा पहले खड़ा होगा, तभी उसके बाद चलना स्टार्ट करेगा. तो यहाँ पे पैटर्न है कि फर्स्ट चाइल्ड स्टार्ट स्टैंडिंग, देन दे स्टार्ट टू वॉक. Proceeds from simple to more complex. Hold things from one hand afterwards. First, hold with two hands. Writing using dots, letters, words, etc. हम यहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. पहले कोई भी पहले कोई भी चीज जो है एक हाथ से करना
स्टार्ट नहीं करता है बच्चा, पहले दोनों हाथों से ग्रैब करता है चीज़ों को, फिर जब उसका बैलेंस और उसका जो उसका ग्रिप है वो अच्छा हो जाता है, तो फिर वो एक हाथ से भी चीज़ों को होल्ड करने लगता है। राइटिंग यूजिंग डॉट्स, लेटर्स, वर्ड्स, पहले डॉट लगा के हम स्लैंटिंग लाइन सिखाते हैं, डॉट लगा के राइटिंग सिखाते हैं, वर्ड्स बनाना, देन जब वो यूज्ड टू हो जाते हैं तो विदाउट डॉट्स के भी अल्फाबेट्स जो है वो फॉर्म लेटर्स को फॉर्म करने लगते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ इन मेल एंड फीमेल दोनों में वेरी करता है। रेट ऑफ ग्रोथ, गर्ल्स एंटर एडोलेसेंस फर्स्ट देन बॉयज, 1-2 साल पहले 10-11 साल की ही उम्र में जो गर्ल्स हैं वो एडोलेसेंस की एज में पहुंच जाती है, बाकी जो बॉयज हैं वो 13-14 ईयर्स में एडोलेसेंट रीच करते हैं, तो दे आर गर्ल्स आर अर्ली। देन डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड डाउनवर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे डेवलपमेंट कैसा हो रही है, एक सीक्वेंस में हो रही है, एक पैटर्न है। सबसे पहले चाइल्ड गेन्स कंट्रोल ऑन हेड फर्स्ट, ठीक है, जैसे ही बर्थ होती है चाइल्ड की तो पहले वो अपना हेड का, उसका जो सर है उसका बैलेंस करना वो सीखता है। देन आर्म्स एंड लेग्स, उसके बाद आर्म्स को बैलेंस करना सीखता है, चीजों को ग्रैब करना स्टार्ट कर देता है। देन लेग्स, पैर चलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो देयर इज अ सीक्वेंस हेड टू लेग। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड कंट्रोल्स manages his movement of head first, then using arms tries to sit, then using legs crawl etc. So head to leg यहाँ पे मूवमेंट है डेवलपमेंट का। Now it depends on maturation and learning. Mature growth changes in brain nervous systems helps in child डेवलपमेंट, ठीक है। हम बात करेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पे कैसे रिलेट कर रही है, तो हाँ, ग्रोथ के ऊपर ही डेवलपमेंट रिले कर रहा है। कैसे रिले कर रहा है, अगर बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ है, ब्रेन की सही से ग्रोथ होगी, ठीक है, मैच्योर होगा, तभी उसका नर्वस सिस्टम अच्छा हेल्दी ग्रो करेगा, तभी जाके वो जो बेटर चीजें हैं उसके अंदर डेवलपमेंट हो पाएंगी, वो जो अच्छे से चीजों को सीख पाएगा। ओके, so that's all in the principles of development and growth. We will continue the next topic in another video. Please like, share, and follow. For more such videos, follow Sciencely Tutorials.